Good morning, children. This is Vaibhav Kulkarni, TGT Maths, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Usmanabad, Taluka Turzapur. Actually, you might have seen so far so many videos I have prepared on class 9th standard maths, class 10th standard maths. My target is to finish off this 9th standard maths as well as 10th standard maths for the students. And along with that, I have also prepared some videos called as Basic Maths for All, in which so far I have almost completed 20 videos and I will be taking up to 40 videos. So the content of the videos is to help the students who are having the problems in their basics. If the students see those basics and they try to do the problems of 9th and 10th standard, I feel that they will feel 9th and standard maths very easy, because as an experienced teacher from last 26 years and plus some 3 years outside Navodaya, I have come to know some of the difficulties that the student face when they come in 9th and 10th standard. So with that intention, I have prepared the videos for basic maths also. Now this basic maths video can be seen even by 6th standard students, 7th standard students, 8th standard students, 9th standard students and 10th standard students. My channel name, as you all know, Maths Made Easy with Vaibhav Kulkarni. This is my channel name. The purpose of making this channel is to give standard coaching to the students who are suffering a lot because of this corona pandemics. Students are finding it very difficult to get the teachers. Most of the colleges are closed, most of the schools are closed, and in that context, students should be able to do maths. With that noble intention, this channel has been started. So I hope you might have already started seeing my channel. I want that you should subscribe it, share it, and even you can share your comments so that we can have an interactive class through mobile and through my internet, through my YouTube channel, Maths Made Easy with Vaibhav Kulkarni. And again, one good news that I am going to give you all, dear children, is I am also shortly starting this on my Facebook also. So shortly you will be seeing me on the Facebook also. You need to search for my page and then you click on my page and then you will get all the updates on the Facebook also. So dear children, try to understand the noble intention and share with as many people as you can. And you are free to share your views in the comment box. In the topic arithmetic progression, exercise 4.3, the question reads, in an arithmetic progression, first term is 5, common difference is 3, nth term is 50, find Sn. Now, what I do is, as soon as I see the question, I record two things, An and Sn. सर An and Sn के फॉर्मूले तो मैं जानता हूँ, जानते हो तो उसको पहले लिख दो ताकि आपके कुछ मार्क्स जो है वो आपके नहीं कटेंगे. सर An का फॉर्मूला तो मैं जानता हूँ सर, An इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी है सर, बहुत अच्छी बात है. Sn का फॉर्मूला भी मैं जानता हूँ सर, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सर दोनों मैं जानता हूं सर, तब तो बहुत अच्छी बात है. अगर दोनों आप फॉर्मूले जानते हो तो पहले आप लिखो, क्योंकि अगर आप इसको लिखोगे फॉर्मूले तो एटलीस्ट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. एग्जाम में क्या होता है, आप जैसे ही फॉर्मूला लिखते हो तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. क्रिकेट आपने देखा होगा, क्रिकेट के अंदर जब नया बैट्समैन आता है तुरंत आके सिक्सर नहीं मार सकता है. वो क्या करता है, पहले डिफेंसिव खेलता है, पहले सामने वाले बैट्समैन से बात करता है, उसको पूछता है भाई कैसे मूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है. उसके बाद वो क्या करता है, धीरे धीरे वो सेटल हो जाता है. वैसे आप भी फॉर्मूला लिखिए पहले Sn और An का, और चलो देखते हैं कि इस फॉर्मूले से हम क्या क्या कर सकते हैं. हमको Sn ढूंढना है बच्चों, हम ढूंढ लेंगे Sn. तो Sn ढूंढने के लिए नेक्स्ट हमको क्या जरूरत पड़ेगी, यहाँ कुछ चीज़ें हमें दे रखी है उन्होंने. व्हाट इज गिवन टू मी, A हमें दिया है, कितना है 5. सर n का हमको पता नहीं है सर, D हमको दिया है 3. ओके फाइन. तो ये इफ यू वांट टू फाइंड आउट Sn,
you need to find out n first. So if you want to find n, we have to go back with this formula. So what is that? an आपको दे रखा है, उस फॉर्मूले के अंदर आपको an दे रखा है. What is an? 50 दिया है. What is a? 5 दे रखा है. What is n? n माइनस 1 है, तो n माइनस 1 मैंने एज इट इज लिखा. कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है? 3 दे रखा है. तो इसको अगर मैंने यहाँ ट्रांसपोज किया तो 50 माइनस 5 हो जाएगा बच्चों 45 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3. तो अगेन ये 45 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो दिस विल बी n माइनस 1, और ये हो जाएगा 15. 45 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 15, और ये माइनस 1 इधर ट्रांसपोज कर दूँ तो प्लस 1 होगा. तो n इज इक्वल टू हाउ मच? 16. मुझे n की वैल्यू मिल गई. n की वैल्यू मिल गई तो इसके अंदर डाल दीजिए आप. तो Sn इज इक्वल टू nth टर्म में 16, तो 16 माइनस 1 इंटू डी. तो ये होगा 16 बाय 2 होगा 8, 2 5 जा 10 होगा, 15 इंटू 3 होगा 45, 2 5 जा 10, 15 इंटू 3 45. तो फाइनली ये होगा 8 इंटू 55, तो 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 5 जा 40 प्लस 4 कितना होगा? 440. सर अगर हम वो पहले वाला फॉर्मूला यूज करते तो काफ़ी आसान हो जाता. क्या था वो फॉर्मूला? इसी से हमने एक फॉर्मूला बनाया था, अगर आपको याद हो तो वो फॉर्मूला था Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ब्रैकेट a प्लस an. सर अगर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल अगर हम करते तो हमको बहुत आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता हमारा. सही है आपका कहना. तो आप इस फॉर्मूले को भी आप यूज कर सकते हैं, मगर 10 में से 9 बार हमें हमारा सोल्यूशन इसी फॉर्मूले से मिलता है. इसलिए जब भी आप देखोगे आप मुझे इसी फॉर्मूले का उपयोग करते हुए आप मुझे देख सकते हो. मगर आपको मैं सजेशन दूंगा कि आप इस फॉर्मूले का उपयोग करने में अगर माहिर हो तो यू कैन यूज इट, बिकॉज यू नो द फर्स्ट टर्म, यू नो लास्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है, ऐसे ना आप ढूंढ सकते हो. नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे सामने है. सर एक एपी हमारे पास है जिसका फर्स्ट टर्म 7 है, 13th टर्म 35 है, तो 13th टर्म क्या होगा ये हमें आप बताइए. सिंपल है बच्चों. हमेशा द बेस्ट थिंग दैट आई ऑलवेज डू इज आई कीप ऑन राइटिंग द फॉर्मूले फर्स्ट. फॉर्मूले आपको कंपलसरी लिखना ही है. तो Sn इज इक्वल टू वॉट? n बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये आपको कंपलसरी यू हैव टू राइट इट. नाउ लेट अस सी इस फॉर्मूले के अंदर हमें क्या क्या हम लिख सकते हैं. सर आपको S13 ढूंढना है तो मैं यहाँ पर 13 लिख दूंगा. n की जगह पे मैं 13 बाय 2 लिख दूंगा बच्चों. अब देखते हैं इस फॉर्मूले के अंदर क्या क्या हम कर सकते हैं. a हमें दे रखा है तो आई कैन राइट 2 मल्टीप्लाइड बाय 7. सर हमें n दे रखा है. n कितना दिया है भाई? सर 13वां टर्म हमको ढूंढना है. सो 13 माइनस 1 यू कैन राइट हियर 13 माइनस 1. सर डी नहीं दिया है, जानता हूं नहीं दिया तो शॉक होने की जरूरत नहीं. ये फर्स्ट स्टेप थोड़ी था, ये तो लास्ट स्टेप था. आप बोलोगे सर क्या है लास्ट स्टेप पहले करते हो? हाँ, क्योंकि डायरेक्टली अगर मैंने सॉल्व किया तो आप बोलोगे सर ये क्यों किया वो क्यों किया. तो ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर 13th टर्म अगर 35 दे रखा है तो इससे मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉमन डिफरेंस ढूंढना पड़ेगा. तो हाउ यू विल डू इट? अब फॉर्मूला 13th टर्म का मतलब होता है बच्चों a प्लस 12d इज इक्वल टू 35. सर a7 दे रखा है तो a7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35. तो ये 7 को मैं उधर ट्रांसपोज कर दूं तो 12d इज इक्वल टू 35 माइनस 7. तो ये होगा 12d इज इक्वल टू 35 माइनस 7 कितना होता है बच्चों? 35 माइनस 7 कितना होता है? 28. सो d इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 12. तो इसको आप सॉल्व कीजिए. ये होगा 4 7 जा 28, 4 3 जा 12. तो ये d इज इक्वल टू होगा 7 बाय 3. दिस इज 7 बाय 3. अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो कॉमन डिफरेंस की जगह पे आएगा 7 बाय
3, कॉमन डिफरेंस इज 7/3। तो फिर अगेन इफ यू कैरी ऑन 13/2 इंटू 2 7 जा होगा 14, 13 माइनस 1 होगा 12, 12 इंटू 7/3, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12। तो ये होगा 13/12, 13/2 इंटू 14 प्लस 28। तो दिस विल बी इक्वल टू 13/2 इंटू ये होगा 32 प्लस 1 कितना होगा, तो 42 होगा। ये 32 प्लस 10 42, सो 2 1 ज़ा 2, 2 21 ज़ा 221 ज़ा। तो इसको हम इंटू करोगे तो 13 1 ज़ा 13, कैरी 1, 13 2 ज़ा 26 प्लस 1 इज हाउ मच 27। तो ये आंसर होगा आपका। या फिर इंटू करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 21 3 ज़ा 63, कैरी 6, 21 1 ज़ा 21 प्लस 6 कितना होगा 27। तो इस तरह से बच्चों नाउ आई हैव रिटन द फॉर्मूला एंड एवरी टाइम व्हाट आई एम डूइंग इज ब्यूटीफुली आई एम ट्राइंग टू एनालाइज इट। कैसे करते हैं, तो फॉर्मूला लिखना ही कंपलसरी है। फॉर्मूला लिखते जाओगे तो आपको प्रॉब्लम बहुत सिंपल मेथड से आप कर सकते हो। तो अभी इस प्रॉब्लम के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं A12 है, D3 है, फाइंड A एंड S12। तो इस प्रॉब्लम को देखते ही S12 मुझे ढूंढना है। तो पहला काम मैं क्या करूँगा, Sn लिखूंगा, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस प्रॉब्लम के अंदर हमें क्या क्या दिया है, लेट अस सी। S12 हमको ढूंढना है, यानी n हमको दे रखा है। n कितना दिया है, 12 दिया है, सो 12 डिवाइडेड बाय 2। फिर और क्या दे रखा है, लेट अस सी। और क्या दिया है, सर a नहीं दिया है, a नहीं दिया है तो a ढूंढना पड़ेगा। n जो है वो 12 दिया है, ठीक है, अच्छी बात है। कॉमन डिफरेंस दिया है क्या, हाँ सर दे रखा है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है। सर इसको और सॉल्व करेंगे तो S12 इज इक्वल टू ये 12 हो जाएगा 6। सर ये होगा, सर 12 माइनस 1 कितना होता है 11, और 11 इंटू 3 कितना होता है 33। सर मगर ए का तो पता ही नहीं है, वेर इज ए सर। यस सर, कम टू दैट। मैंने जैसे आपको बताया कि कीप फर्स्ट थिंग ऑलवेज आप याद रखिए कि कीप राइटिंग द फॉर्मूलाज, पुटिंग द वैल्यूज, सो दैट यू विल बी राइटिंग सम स्टेप्स फॉर द एग्जामिनर टू गिव यू सम मार्क्स। एग्जामिनर्स को मदद कर रहे हैं आपके, मार्क्स आपको दे दे। और वैसे ही आपके दिमाग में ये बात भी आ जाएगी कि किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ी और हमें क्या दे रखा है। तो यहाँ फिर से हम विल गो बैक अगेन, हम फिर वापस पीछे की तरफ आएंगे। पीछे की तरफ आके हम क्या देख रहे हैं, सर 12th टर्म आपको 37 दिया है। तो 12th टर्म अगर 37 दे रखा है बच्चों, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस 11d इज इक्वल टू 37। क्या दिया, a प्लस 11d इज इक्वल टू 37। तो a प्लस 11d, a मुझे नहीं पता है, 11 इंटू डी मुझे पता है, d कितना है 3 है। तो ये होगा a प्लस 33 इज इक्वल टू 37। सो a इज इक्वल टू 37 माइनस 33। तो a इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 4 होता है, और 3 माइनस 3 0 होता है। क्या कर सकते हो, ये 4 आप यहाँ लिख दीजिए। सो 2 इंटू 4 कितना होगा बच्चों, 8 होगा। और दिस विल बी इक्वल टू 6 इंटू 33 प्लस 8 कितना होता है बच्चों 41। तो ये होगा 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो ये हो गया हमारा थर्ड प्रॉब्लम। अब हम 9th प्रॉब्लम ले रहे हैं। आप सोच रहे होंगे सर आपने फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया, सेकंड सॉल्व किया, थर्ड कर रहे हैं, 9th क्यों कर रहे हैं। 9th प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा है और नेक्स्ट एपिसोड में आपका हम 9th प्रॉब्लम भी, इसके पीछे वाले सारे प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व करके आपको दे रहे हैं। तो फिलहाल विद इन दिस स्पेस आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम हियर। तो यहाँ ए दे रखा है, एन दे रखा है, और 192 यहाँ दे रखा है, और आपको एस भी दे रखा है, और आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कॉमन डिफरेंस कितना होगा। यानी इस फॉर्मूले के अंदर क्या क्या दिया है और क्या ढूंढना है। हियर इफ यू सी वन अननोन
n is unknown, a is unknown and d is unknown. 3 unknowns are there और 3 unknowns के अंदर अगर आपको 2 known भी है तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर Sn फिर से वही आप देखिए, I have solved the problem for 4 times and every time I solve the problem I have that habit of writing the formula. So children, as a teacher I advise you that keep writing the formulas every time you solve the problem, because in mathematics along with your answer steps carries marks. If your answer is wrong and steps are right, at least you will get the maximum marks. May not be 100%, but at least maximum marks. But if your answer is right and steps are wrong, you will not get full marks or you will not get the required marks. So always keep writing the formula. So what I'll do is I'll write the formula here. Sn is equal to n by 2 into bracket 2 into a plus n minus 1 into d. This formula I'll write. Now in this formula what is given to me I'll write it here. Yes, 8 मुझे दिया है, that means nth term मुझे दिया है 192. सर n आपको दिया है सर 8 by 2. सर उसके बाद आपको क्या दिया है? सर a आपको दे रखा है, कितना दिया है? 3. सर n 8 दिया है, चलो अच्छी बात है. सर d नहीं दिया है, कोई बात नहीं, हम ढूंढ लेंगे. तो जब इसको मैं सॉल्व करूं 2 1 जार 2 2 4 जार 8, तो ये होगा 192 इज इक्वल टू 4 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 3 इज हाउ मच 6 एंड दिस विल बी 8 minus 1 is 7, 7 into d is 7d. तो इस इंटू वाले 4 को अगर मैं यहाँ ट्रांसपोज कर दूं तो दिस विल बी 192 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d. तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये होगा 4 1 जार 4 4 4 जार 16 कैरी 3 4 8 जार 32. तो ये होगा 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d. इस 6 को मैंने अगर इधर ट्रांसपोज कर दिया तो 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 7d. तो ये होगा 42 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू d, यानी d इज इक्वल टू हाउ मच 6. तो चिल्ड्रन, what you should learn from what I am doing is, first thing, the key thing that you should write is write the formula, then put the values and think in the way in which I am directing you. जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से मार्गदर्शन मैं आपको कर रहा हूँ, उसी मार्गदर्शन में आप करने का प्रयास कीजिए. बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत सिंपल है. आप जैसे मैं बता रहा हूँ, एक मुझे कमेंट आया था कि सर आर यू गोइंग टू टीच मी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह. आई डोंट वांट टू नेम द पर्सन, बट बेटा अगर आप मुझे सुन रहे हो तो आई थिंक अभी तक जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के वीडियो अगर आपने देखे हैं तो मेरे ख्याल से अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस तुम्हें ईजी लग रहा होगा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.